Welcome to everyone for having joined the session today. My name is Chaitanya Nadkarni. I am from Stars Forum. We have the pleasure of having Mr. Krishnavatar Sharmaji today, who is the founder, co-founder, and program director of Ajivika Bureau, who is going to be presenting. Uh, who is going to be presenting today about some very important aspects which the COVID situation, particularly in India, has brought to the fore, which is the issue of migration, internal migration, particularly. And we're going to talk a little bit about his views, his organization's views, what has happened, and so on. But before I do that, let me spend 2 minutes sharing with some of the new people who have come in about what Stars Forum is. I'll just give a very short introduction about Stars Forum, and then we'll start off on that. Just give me a moment, please. Yeah. So Stars Forum, some of you have been involved, and I know there are some familiar names as well. But for those who have not been in touch with Stars Forum is basically a body of peer organizations, peer individuals. The body was formed to facilitate conversations, facilitate collaboration amongst various organizations and individuals that are spread out across the country and who are primarily focused on development of the rural communities, rural people, rural individuals through vocational skills training, entrepreneurship development, developing appropriate technology that will be of value to the rural economy and so on. And the idea of the Stars Forum is to bring all of these various players together so that we can have some meaningful conversations. We can have potentially collaborative opportunities as well, and together we can sort of shape and move the economy, the capabilities, the capacities of the rural Indians forward on that, using that as the platform. Broadly, what is our mission? One is Stars Forum is a catalyst. We bring people together, and we bring wonderful knowledge sharing opportunities amongst all the organizations who are part of this network. We enable opportunities for collaboration between partners. Many times we get different people asking, do we know somebody? And we have the power of network that plays and allows us to connect them with others on the ground and facilitates conversations, partnerships, and so on. Stars Forum has also been very supportive of the use of innovation and technology. We all saw what has happened with education and skills development across, from all the way from uh, primary school, pre-primary, all the way to college education, engineering, and so on. If it were not for a technology, we wouldn't have been able to even continue what was going on. So this is the post-COVID and post-COVID thing, but we as Stars Forum have been particularly interested in seeing how technology itself and innovation can be used to reach out to much larger numbers of people. And some of us have done various different experiments, pilots, and full-fledged programs during the COVID periods as well. We also invite experts, we facilitate workshops to help organizations scale their work, overcome capacity challenges or constraints that may be there. So one of the things that as Stars we believe is that we all have opportunities to learn from each other. Big organizations that have gone through difficult periods and have survived, they have lessons that can be learned by startups, social entrepreneurs who can use that knowledge to scale their operations. And this is a great platform for providing that kind of a capacity building opportunity. And finally, one of the important things that we believe this network can do is by exposing future leaders of the sector, supporting young professionals who are in this sector, giving them the platform to talk about what they're doing, learn from experts, and then hopefully we have a role to play in making them stars of the future, leaders of the future, and so on. So this in nutshell is the mission of Stars.
We will have today the conversation. The way we are doing this is that we have a presentation by Mr. Sharma. Then we have invited Mr. Narendra Paul, who is the Chief Operating Officer of Chinmaya Organization for Rural Development, to engage in a conversation and a dialogue, and then also bring in people from the audience who have questions, but more importantly, who have insights and who have things to share from their own work with respect to this important topic. And we will have this conversation going on. And at the end of it, of course, we welcome all of you. To whoever is not yet connected with Stars Forum, please write to us. Please become part of this network. Please offer your expertise, and please ask for things that might benefit you as well. With that short presentation, I will now invite Krishnavatar Sharma uh, to launch his presentation. And if I may spend just a minute or two just introducing Krishnavatar ji also. Krishnavatar Sharma ji is based in Udaipur. He is the co-founder of Ajivika Bureau, and a very highly respected, not only as an individual, but he and his organization are highly respected in the space of what they have done, particularly with respect to internal migrants within this country. And as you know, the number of internal migrants is probably 120, 130 millions of people, Indians, who keep having to reach out to better places for survival or for in better income opportunities and so on. Mr. Sharma and his organization have won plenty of awards for the kind of work that they've done in this space. Their writings, their training programs, their on the ground work, as well as their broader approach and the policy level inputs that they've been able to give, have been extremely valuable. So we are very fortunate Mr. Sharma has agreed to talk to us. All of us have seen 1 year ago, 1.5 years ago, what was happening with the migrants in this country, and it would be good to see what, from an expert organization and an expert like Mr. Sharma, what is going on. And with that, I will hand it over to you, Krishnavatar ji. Maybe if you can start with your presentation. थैंक यू चेतन जी। देखिए, मेरा अपना परिचय तो चैतन्य जी ने दे ही दिया है, और मैं आज जिस रियलिटी के बारे में बात करूंगा, हमारी जो एक सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है हमारे देश की, उसके बारे में जो बातचीत करूंगा वो इंटरनल माइग्रेशन से जुड़ी हुई है। और हो सकता है कहीं, एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा स्टार फोरम का कि उन्होंने आज वो अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला कि माइग्रेशन के, लेबर एंड माइग्रेशन के इशू पर हम लोग बातचीत कर सकें। उसके साथ ही जो स्टार एफिलेट्स, जो इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इस फोरम में जुड़ी हुई हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज समय निकालकर इस विषय पे चर्चा में शामिल होने का और अपने भी विचार शेयर करने का, साथ के साथ ही कुछ और सवाल जवाबों में भाग लेने का ये समय निकाला। देखिए, हो सकता है क्योंकि पेंडेमिक के बाद में एक ही जो एक इनविजिबल पॉपुलेशन थी वो काफ़ी विजिबल बन गई। तो हो सकता है क्योंकि पिछले 1.5 साल में लेबर एंड माइग्रेशन के बारे में कई मौक़ों पर आपने सुना होगा, कई ऐसे अवसर, कई ऐसे वेबिनार जिसमें हमें भी सुना होगा, हमारे अपने साथियों को भी सुना होगा, ऐसे कई मौके आपके सामने आए होंगे। तो हो सकता है मेरी अपनी प्रेजेंटेशन में वो दोहरान हो, वो कुछ चीज़ों का रिपीटेशन हो, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में समय समय पर बात करते रहना ज़रूरी है। समय समय पर उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को और उससे जुड़े हुए इंटरवेंशंस पे बातचीत करते रहना जरूरी है। तो मैं ब्रॉडली मेरी अपनी प्रेजेंटेशन को दो तरह से, एक तरह से रखूँगा। पहला तो भाग है जिसमें कि जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है लेबर एंड माइग्रेशन का, और उसमें क्योंकि आजीविका ब्यूरो एक तरह से सदर्न राजस्थान एंड पश्चिमी भारत के कॉरिडोर में हम लोग काम करते हैं, तो उस एक ओवरऑल क्या कॉन्टेक्स्ट है और आजीविका ब्यूरो ने किस तरह की अंडरस्टैंडिंग पूरी लेबर एंड माइग्रेशन को लेकर बनाई है उसको रखूँगा, और किस तरह की फिर
एक इस हार्डशिप को और इस समस्या को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी करीब लोगों पे बनाने के लिए किस तरह के इंटरवेंशंस किए, उसके बारे में मैं ब्रॉडली बात करूँगा। दूसरा, जब कोविड के बाद जबकि सबसे ज़्यादा और इनिशियली फर्स्ट लॉकडाउन लगा, तो जिस तरह की एक लेबर क्राइसिस उस समय खड़ी हुई, उस समय हमारे किस तरह की उस कोविड के रेस्पॉन्स में किस तरह के हमारे अपने प्रयास रहे, एंड इवन सेकंड फेज में भी किस तरह के प्रयास रहे, उनको मैं शेयर करूँगा। तो बेसिकली मेरी जो प्रेजेंटेशन वो इस तरह से दो भागों में इस तरह से है। तो आप सभी जानते हैं कि आजीविका ब्यूरो एक तरह से लेबर एंड माइग्रेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा अपना एक कहते हैं ना कि पंच वर्ड है कि लिव एंड वर्क इन डिग्निटी एवरीवेयर, काम का और काम की जगह का और कामदारों की रहने की जगह हमेशा गरिमा में हर जगह होनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये आंकड़ा है ना, एक छोटा आंकड़ा नहीं है। 100 एक तरह से 100 मिलियन से 180 मिलियन वर्कफोर्स हमारी इंटरनली माइग्रेट करती है। हमारे इतने सारे है ना वर्कफोर्स जो है कि हमारे विद इन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या विद इन स्टेट वो अपने रोजगार के लिए माइग्रेट करती हैं। ज़्यादातर किन वजहों से लोग माइग्रेट करते हैं, तो रूरल एरियाज में जिस तरह की एग्रीकल्चर का जिस तरह का डिस्ट्रेस है, जिस तरह की पावर्टी है, जिस तरह की लोकल रिसोर्स लोकल लेवल पर रोजगार की संभावनाएं कम हो रही हैं, वो तो एक कारण है ही। लेकिन जिस तरह से और स्टेट में जहाँ अलग तरह की नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, अलग तरह की डेंसिटी है पॉपुलेशन की, और बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक वो कारण है। दूसरा, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, वो एक तरह से चीप लेबर पर क्रिएट करती है। तो जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि आज चीप एक सस्ती लेबर पर सर्वाइव करते हैं, दूसरा कारण इस माइग्रेशन का ही है। ज़्यादातर आप जानते हैं कौन सी स्टेट है जहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये वो स्टेट हैं जहाँ जो कि एक तरह से सेंडिंग स्टेट है जहाँ से माइग्रेशन होता है। वो जो स्टेट हैं जो कि रिसीविंग स्टेट हैं, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, ये उसी स्टेट। जनरली ज़्यादातर जिन सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, एक समय था जब बहुत बड़ा इनफॉर्मल वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम करता था, आज भी वो सबसे बड़ा सेक्टर है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो अर्बन कॉन्टेक्स्ट में, अर्बन एरियाज में जिस तरह की नई तरह के रोजगार है, जिस तरह की इंडस्ट्री है, उसमें कंस्ट्रक्शन है, डोमेस्टिक है, टेक्सटाइल, माइन एंड क्वेरीज, मैन्युफैक्चरिंग, हेड लोडिंग, होटल, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। कृष्णा जी, हाँ, आप हो सके तो स्क्रीन फुल स्क्रीन कर सकेंगे, हाँ, या स्लाइड शो शुरू करेंगे तो अच्छा दिखाई देगा स्लाइड। जी, ये फर्स्ट क्लास, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ मैं अब थोड़ा हमारे अपने अनुभवों से मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए कैसे एक माइग्रेंट वर्कर्स की लाइफ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। तो एक तरह से अर्ली एंट्री एंड अर्ली एग्जिट वाला एक तरह से एक फिनोमेना हमारे अपने देश में इस माइग्रेशन का है। तो ऐसे एरिया जो सेंडिंग एरियाज हैं, जो रिसोर्स पुअर एरियाज हैं, वहाँ से एक तरह से 14-15 साल की उम्र में लोगों का एक तरह से सेकंड वेज अर्नर की तरह से लेबर मार्केट में आना शुरू हो जाता है। और उनका जो पीक समय होता है कमाने का, एक प्राइमरी जो वेज अर्नर जो होते हैं, वो उनका समय होता है 21 से 30-31 साल। और एक तरह से जब हमारा, एक तरह से ये कहते हैं कि हमारा अपना कमाने का पीक समय होता है जब उनका एक तरह से एग्जिट का समय होता है। जब तक वो मार्केट में जिस तरह की वर्क कंडीशन है, जिस तरह की लिविंग कंडीशन है, जिस तरह का हार्ड वर्क वो करते हैं, उसका इतना टोल वो दे चुके होते हैं कि 35 से 40 साल की उम्र में एक तरह से उनका वापसी होना शुरू हो जाता है। और गाँव में एक लोकल लेबर की तरह से वो एक
विकल्प अपना बना लेते हैं। और तो इसका मतलब है कि उनके बच्चे एक तरह से वापस मार्केट में आना शुरू कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरह की इश्यूज, किस तरह की प्रॉब्लम्स इनको लेबर मार्केट में फेस करनी होती है। ज़्यादातर जो हम बात कर रहे हैं, जो 100 to 180 मिलियन, ये इस रेंज में जो लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या है। मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि इस संख्या में अभी चाइल्ड लेबर नहीं है। इस संख्या में अभी भी चाइल्ड लेबर का काउंटिंग नहीं है, जो कि बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में चाइल्ड लेबर की भी है। तो ये एक तरह से सीजनल टेम्परेरी सर्कुलर वर्कफोर्स है, जो कि रोजगार के लिए शहरों में आती है और वापस। तो इकोनॉमिक लाइफ जो है उनकी शहरों में है, और एक सोशल लाइफ अभी भी उनकी अपने घरों, अपनी निजी स्टेट्स में है। ज़्यादातर वर्कफोर्स क्योंकि कम उम्र में, ऐसी उम्र में माइग्रेट करते हैं, तो लेबर मार्केट में अनस्किल्ड तरीके से, अनस्किल्ड कामों में जाकर जुड़ते हैं, जो कि काफ़ी लो एंड के होते हैं, काफ़ी हार्ड काम होता है और काफ़ी रिस्की काम होता है। तो उस तरह के कामों में जाकर ये करते हैं। ज़्यादातर सब कॉन्ट्रैक्टिंग के रूप में काम करते हैं, कि एक पूरी लंबी चेन है कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो कि जिनके थ्रू आजकल रिक्रूटमेंट होता है। बहुत कम, एक तरह से हमारे अपने अनुभव कहते हैं कि अधिकतम 10% आज, 10 to 20 मैक्सिमम परसेंट जो वर्कफोर्स है वो कंपनियों द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा ली जाती है। अदरवाइज 80% कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू वहाँ रिक्रूटमेंट और एजेंट्स के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है। ज़्यादातर इनफॉर्मल एंड कैजुअल लेबर है। अब इनफॉर्मेलिटी को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए कि इनफॉर्मेलिटी से मतलब क्या है। तो इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल वर्कफोर्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब है कि वर्कर्स की वर्क का, काम का किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। देयर इज नो एनी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन अबाउट देयर वर्क एंड देयर रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। अधिकांश, जैसे मैंने कहा कि एजेंट्स के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू है, किसी तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ज़्यादा होती हैं, तो किसी तरह की कोई सामाजिक सुरक्षाएं इस तरह किसे ये वंचित रहते हैं। हाई एंड फायर, जरूरत है तब आपने ले लिया, जब जरूरत है नहीं आपने निकाल दिया। जो डेली वेजेज हैं या मंथली वेजेज का जो सिस्टम बहुत समय से चला आ रहा है, उसको धीरे धीरे टास्क बेसिस पे, मतलब वर्कर्स को जो एक 8 घंटे का और 8 घंटे के आधार पे जो पेमेंट का एक बेसिस है, जो कानून कहता है, उसको हटाकर धीरे धीरे अब ज़्यादातर कामों में टास्क दिए जा रहे हैं, जो कि किसी भी रूप में वर्कर्स के हित में नहीं है, वो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स के हित में है। किसी तरह की, ज़्यादातर ये जिस इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं वहाँ, और जो वैल्यू चेन है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनमें कि ज़्यादातर इनफॉर्मल और इस तरह का माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा लीगल कंप्लाइंसेस नहीं है। वो ज़्यादातर अपने आप को कोशिश करते हैं, इस तरह का उनका स्मॉल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो लीगल कंप्लाइंसेस से बचना चाहते हैं, लीगल किसी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहते। कई फ्री लेबर के कई तरह के तरीके हमें देखने को मिलते हैं, कपलिंग देखने को मिलती है। अगर फैमिली अगर माइग्रेट कर रही है तो कैसे हस्बैंड और वाइफ को एक साथ जब एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो अगर दोनों इंडिविजुअली अगर अलग अलग काम करने जाएं तो टोटल कितना वेजेज बनता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ शहरों में कोशिश करते हैं कि एक साथ एक साइड पर काम करें, तो उनको जो एक नॉर्मल वेजेज है क्योंकि अलग अलग वर्कर्स को दी जाती है, उससे भी कम वेजेज दिया जाता है। और कई जगह आप देखेंगे कि रहने और खाने की सुविधा से काफ़ी कम, वजह से काफ़ी कम वेजेज दिए जाते हैं, कि हम इनको खाना देते हैं या हमको रहने की जगह देते हैं। बॉम्बे जैसे शहरों में रहने का बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो वहाँ रहने की जगह देने, वो एक तरह से वेजेस को कम किए जाने का, वेजेस को कम बनाए जाने का एक बहुत बड़ा आधार उन्होंने। शहर से, शहर में इतने समय रहते हैं, लेकिन वो शहरी सुविधाओं से, शहरी फैसिलिटीज से
सर्विसेज से किस तरह से वंचित हैं, किसी तरह की कोई हाउसिंग सैनिटेशन फैसिलिटी शहरों में नहीं मिलती है। और ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे एरियाज़ में, ऐसे फेरिफेरल एरियाज़ में रहते हैं जो कि काफ़ी आमतौर से काफ़ी नेग्लेक्टेड, काफ़ी गंदी और एक तरह से उस शहर की बहुत वैसी बस्तियाँ होती हैं। हेल्थ केयर, ये जिन शहरों में काम करते हैं वहाँ दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन जब भी बीमार होता है कोई भी वर्कर तो उसे अपने गांव लौटना पड़ता है, क्योंकि न तो उनकी एक्सेस है, और एक्सेस है तो इतनी कॉस्टली है कि वो उतनी दिनों उस खर्चे को सहन नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट लीगल एड, लीगल एजुकेशन की, जिसमें कि वर्कर्स के साथ जो भी फ्रेड होते हैं, कोई अब्यूज होता है, हरेसमेंट होता है, तो इस तरह की सेवाओं से टोटली माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ के सिस्टम से, वहाँ की सरकारी विभागों की सेवा से एकदम वंचित होते हैं, एकदम एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस भी करते हैं तो उन्हें कोई बहुत उस तरह का रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हम देखते ही हैं कि कई जगह हमें देखने को मिलती है। और ये सब इस वजह से भी है कि कोई फॉर्मल, कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल एस्टिमेट्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है माइग्रेंट वर्कर्स की इस पॉपुलेशन को सही उसका आकलन करने का, सही उस डेटा को कैप्चर करने का। ये जो भी अभी आपके सामने जो आंकड़े हैं वो एक तरह से इनफॉर्मल इकोनॉमी के अपने आंकड़े हैं, और मार्केट लार्जली अनरेगुलेटेड तरीके से कंडीशंस में काम करता है। ज़्यादातर इस तरह की प्रैक्टिसेस है मार्केट में कि वो लीगल कंप्लाइंस, सोशल सिक्योरिटी की कंप्लाइंस से कैसे बचें, उस तरह की प्रैक्टिसेस हमारे लीगल मार्केट में हैं। माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ इतने लंबे समय काम करते हैं, सालों साल काम करते हैं, किसी तरह का वोटिंग राइट्स उनको नहीं होता। तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं है तो कोई पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं है, तो एक तरह से उस पूरी वहाँ की गवर्नेंस का कभी वो हिस्सा बनते नहीं हैं। और हमेशा एक तरह से धीरे धीरे, और अभी जैसे नए तरह के कोड्स भी आए हैं, आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियन या अपने आप को एक तरह से सोशल सॉलिडिटी ग्रुप्स की तरह बनाकर अपनी ज़रूरतों के लिए काम करने, उस तरह के फोरम से भी उन्हें धीरे धीरे वंचित कर दिया। हेल्थ, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह की काम की प्रकृति है, जिस तरह के एकदम घोटू एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जिस तरह का हार्ड काम है, जिस तरह का पोल्यूटेड एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ हमें हेल्थ की अलग अलग तरह की, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, तो सामान्य हेल्थ की काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, HIV, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस आमतौर से जो नेशनल एक आंकड़ा कहता है उससे डबल माइग्रेंट वर्कर्स में पाई जाती है। उसी तरह से HIV भी 10 टाइम्स माइग्रेंट वर्कर में, जो कि आज की बात नहीं, काफ़ी हम लोग एक जो नया फिनोमेना जो हमारे अपने सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पे भी काम करते हुए हमें समझ आया, वो था कि जो अडल्ट मेल न्यूट्रिशन, ज़्यादातर हम बच्चों में, महिलाओं के मेल न्यूट्रिशन की ज़्यादातर बात होती है, लेकिन इस वर्कफोर्स में एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कि एक हाई लेवल का मेल न्यूट्रिशन हमें देखने को। उसके अलावा अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे सिलो पत्थर घड़ाई का काम करते हैं, पत्थर से जुड़े हुए हैं, उनके सिलोसिस की बीमारियां हैं, जो केमिकल्स में काम करती हैं, वहाँ बर्न्स है, स्किन की कई सारी दिक्कतें हैं, जो बोझा उठाते हैं उन्हें बोन्स की कई सारी दिक्कतें हैं। तो ये जो एक जिस तरह की एक माइग्रेंट वर्कर्स की अपनी काम की और काम से जुड़ी स्थितियां और शहर में जिस तरह का एक्सक्लूजन है, उसी को ही ध्यान में रखते हुए आजीविका ब्यूरो 2005 में काम की शुरुआत की, और एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्स, कैसे जो माइग्रेशन जो रियलिटी है इन ऐसे स्टेट से, ऐसे गरीब प्रदेशों में और ऐसे एरिया से लोगों का रोजगार के लिए शहरों में आना ही है, तो कैसे माइग्रेशन को एक मोर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की बनाया जाए, कैसे उनकी हार्डशिप्स को कम करके उनके लिए भी माइग्रेशन एक इकोनॉमिकली वाइबल ऑप्शन है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, माइग्रेशन अब एक डिस्ट्रेस और किसी और तरह की डिस्ट्रेस का ही परिणाम, ये
काफ़ी सारी बड़ी संख्या का, क्योंकि ऐसे विशेष पुअर्स एरिया में रहती हैं, उनकी एक वैलिड लाइवलीहुड का सोर्स भी है। धीरे धीरे ऐसे एरियाज के लोगों के लिए अब माइग्रेशन और लेबर एक तरह से उनकी वैलिड लाइवलीहुड का सोर्स आज की तारीख में। ज़्यादातर हम, जैसे मैंने कहा कि सदर्न राजस्थान के दक्षिणी भाग में हम लोग करीब 4-5 जिलों में काम करते हैं, और यहाँ क्योंकि गुजरात काफ़ी हमारी नेबरिंग स्टेट, तो ज़्यादातर लोग गुजरात में जाते हैं और गुजरात से आगे भी महाराष्ट्र तक जाते हैं। तो इस कॉरिडोर में हमारा अपना काम है। सर्विस के साथ हमारी कोशिश है कि कैसे वर्कर्स के अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, कलेक्टिव एक्शन के लिए वर्कर्स की का मोबिलाइजेशन किया जाए, वर्कर्स के संगठन बनाए जाएं। तो उस तरह का काम सर्विसेज और सॉल्यूशंस के साथ साथ वर्कर्स को मोबिलाइजेशन का काम भी हमारा है। जो सेटअप है, हमारे जो ऑपरेशनल मॉडल्स हैं, वो 3S के हम कहलाते हैं। आज स्टार के जो एफिलिएट्स में कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़कर जिन्होंने एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव था माइग्रेशन सर्विसेज को थोड़ा सा एक्सपेंशन करने का, उसमें जुड़े भी रहे हैं। तो इस तरह का रहा है। इस तरह की सर्विसेज इनकी रेस्पॉन्स में जो समस्याएं माइग्रेंट वर्कर्स फेस करते हैं, उसके रेस्पॉन्स में हमने किस तरह की सर्विसेज डिजाइन की है। देखिए, जो जिस रजिस्ट्रेशन की और जिस एक ऑथेंटिक डेटा की आज सरकार वापस बात कर रही है, आज से हमने करीब 15 साल पहले इस बात को समझा भी था और उस पर काम भी किया। तो एक वर्कर्स आइडेंटिटी का, जिसको कि राजस्थान सरकार ने एक तरह से रिकॉग्नाइज किया, और एक ऑथेंटिक प्रोसेस के तहत हमने रजिस्ट्रेशन का और आइडेंटिटी का काम किया, और करीब 1 लाख लोगों वर्कर्स को हम इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड और उनका रजिस्ट्रेशन कर पाए, जिसका कि डेटा हम लेबर डिपार्टमेंट को भी, राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट को भी देते रहे। तो आज उसी तरह के एक तरह से रजिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कैसे इनफॉर्मल वर्कर्स का वापस रजिस्ट्रेशन किया जाए, उसकी मांग वापस उठी है, लेकिन ये काम हमने उस समय ही शुरू कर दिया था। ये सही है, ये जाहिर सी बात है कि जब आधार का चलन बढ़ा, आधार आइडेंटिटी के रूप में देशव्यापी ये अभियान चला, तो धीरे धीरे इस कार्ड की भी थोड़ी उस तरह की डिमांड नहीं रही। लेकिन अभी भी वर्कर्स इस तरह के अपनी एक वर्कर्स की आइडेंटिटी की दृष्टि से इस तरह के कार्ड की डिमांड आज भी करते हैं। दूसरा, सबसे इस तरह की इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेटिंग्स में काम करते हैं, स्वाभाविक है कि उनके साथ लीगल डिस्प्यूट्स होना जरूरी है, क्योंकि देयर इज नो एनी डॉक्यूमेंटेशन, काम को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसे में काम किया, करवाया और पैसा नहीं दिया, जो काम जितने पैसे वेजेस तय किए उतने नहीं दिए, इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हमारे वर्कर्स के साथ उठना जरूरी है। तो हमने उसके रेस्पॉन्स में एक लीगल एजुकेशन और लीगल एड का काम शुरू किया, और एक सेपरेट यूनिट लीड करके एक यूनिट जो कि एक्सक्लूसिवली इसी इशू पर काम करती है, वो सेटअप किया। और उसके साथ साथ ही फिर हमें कि ठीक है, हमारे अपने जो रेस्पॉन्स सेंटर हैं, हमारे अपने जो वर्कर्स सेंटर्स हैं, वहाँ तक तो फिर भी वर्कर्स अप्रोच कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिस तक हमारी भी पहुँच नहीं है। तो आजीविका ब्यूरो ने लेबर हेल्पलाइन 1899 में इनिशिएटिव को शुरू किया, जो कि उन वर्कर्स तक भी पहुंच चुकी जो कि हमारे फिजिकली हमारे सेंटर्स तक नहीं पहुंच सकते थे। और मैं ये आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ, और ये हमारी पूरी एजुकेशन के साथ साथ जिस तरह की रिजोल्यूशन की मैकेनिज्म आजीविका ब्यूरो ने अपनाई, वो एक तरह से मीडिएशन के ऊपर। हमें पता था कि ज़्यादातर लोग जिस तरह से मूव करते हैं, जो एक तरीका है, वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू है, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत कुछ उनके अपने एरिया के हैं, अपने मिलने वाले हैं, अपने 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 एरिया, अपने रिलेटिव्स भी हैं कई मायनों में। तो कैसे हम उस रिलेशनशिप को भी इतना ज़्यादा ना बिगाड़ करके एक मीडिएशन का,
न कि लिटिगेशन का एक अप्रोच अपनाएं। और मीडिएशन के अप्रोच से हम लोग इस तरह के डिस्प्यूट्स के बारे में एक वर्कर्स के बीच में भी कॉन्फिडेंस खड़ा करें, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो भी एक तरह से न्यूट्रल एक एजेंसी की तरह से हमें देखें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर हम ये देखें कि इन पिछले 15 सालों में, 15 साल तो नहीं कहूँगा क्योंकि 2008 में एक तरह से लीगल वाला काम हमारा शुरू किया, 2005 में 3 साल हमें भी वर्कर्स के बीच में लीगल वाले काम पे वर्कर्स का ट्रस्ट बनाने के में समय लगा। लेकिन इन एक तरह से 7-8 सालों में करीब 19,800 केसेस हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं अलग अलग सेंटर्स पे और लेबर लाइन पर। उनमें से हम 11,567 केसेस हम रिजोल्व कर चुके हैं, और ये मीडिएशन के थ्रू, इसमें कोई लिटिगेशन की बात नहीं है, मीडिएशन के थ्रू हमने ये रिजोल्व किए हैं। और उसमें लगभग 30 करोड़ जो मजदूरों की मेहनत का जो मेहनताना था, जो कि कभी मजदूरों तक नहीं पहुंचता, वो इन मजदूरों तक पहुंचा है। और इसमें लेबर लाइन का भी इंक्लूड है अलग से, लेकिन टेलीफोनिक एक क्रेडिबल थ्रेड के साथ एक 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 न्यूट्रल पार्टी की तरह से आप हम इंटरवीन करते हैं। तो क्योंकि वर्कर्स के केसेस इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि उनको कोर्ट्स में ले जाया जाए, न्यायालयों में ले जाया जाए, लेकिन आज इस मीडिएशन के प्रोसेस से ही पैरालीगल का कैडर इन वर्कर्स के बीच में खड़ा करके आज इतने सारे केसेस हमने अपने इन सेंटर्स के मार्फत किए हैं। जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली वर्कर्स के अपनी एक कलेक्टिव एक्शन के लिए, एक कलेक्टिव वॉइस के लिए ज़रूरी है कि वर्कर्स खुद मोबिलाइज हों और अपनी ज़रूरतों के लिए या तो शासन से डिमांड करें या इंडस्ट्री से डिमांड करें, उनके लिए ऑर्गेनाइज होना जरूरी। और वो उसके साथ साथ एक म्यूचुअल सपोर्ट का, देखिए जिस तरह से वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरह से बिखरा हुआ है, जिस तरह से इंडस्ट्री ने उनको बिखेर दिया है, उनकी म्यूचुअल हेल्प के लिए भी, एक म्यूचुअल एक कोऑपरेशन के लिए भी उनका ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। तो आज करीब 7 ट्रेड यूनियंस, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस आजीविका ब्यूरो ने पिछले 16 सालों में प्रमोट की हैं, और 20 लेबर कलेक्टिव, जिनमें कि कुछ कलेक्टिव ने मिलकर तो यूनियन भी बनाई, लेकिन अलग अलग एक ट्रेड बेस्ड कलेक्टिव क्योंकि आजीविका ब्यूरो द्वारा प्रमोट किया। एक काम के साथ साथ एक समझ हमारी ये भी बनी कि जो परिवार जहाँ से मेल माइग्रेशन ज़्यादा है, तो एक परिवार पीछे छूट जाता है, और महिलाएं जो कि बाकी की पूरी चीज़ों को मैनेज करती हैं, उसकी समस्याएं भी दोनों ही तरह से, उस पर तो एक विशेष तरह का बर्डन आता ही है, एक अलग तरह की उस पर काम का बोझ बढ़ता है, लेकिन वो माइग्रेंट वर्कर्स की माइग्रेशन के साइकिल पे बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसे में कैसे फैमिलीज के साथ काम किया जाए जिससे कि वो खुद एक एम्पावर्ड होकर अपनी बेसिक एंटरटेनमेंट तक एक्सेस बना सके, और अपनी घरों की और अपनी पारिवारिक एक डिसीजंस में, रोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो एक एफईपी प्रोग्राम करके, फैमिली एम्पावरमेंट प्रोग्राम करके, कि माइग्रेंट वर्कर्स एज ए इंडिविजुअल नहीं, ऐसे फैमिली की तरह से हम अप्रोच करें, जिससे कि एक फैमिली की ओवरऑल वेलबींग को हम इस पूरे इनिशिएटिव और इस पूरे काम से हम बढ़ा सकें। उस उद्देश्य से परिवारों के साथ भी यहाँ अपना हमारा काम है। स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग अनस्किल्ड वर्कफोर्स की तरह से जाकर मार्केट में जुड़ते हैं, तो आजीविका भी, और ये वो वर्कर्स हैं जिनको कि मार्केट स्वतः अपग्रेड नहीं करती, स्वतः वहाँ सीखने के कोई अवसर होते नहीं है। और ये ऐसे एरियाज से यूथ हैं जो कि अर्ली एज में तो आते ही हैं, लेकिन इनके लिए काम से जुड़े रहने का, क्योंकि वो काम से बहुत लंबे समय भी अलग नहीं रह सकते, बहुत लंबी लंबी ट्रेनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें कमाने की ज़रूरत है, उन्हें लगातार अपने घरों को पैसा भेजकर उनके सर्वाइवल के लिए कमाते रहना जरूरी है। तो कस्टमाइज प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए
और एक पूरी की पूरी स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एकेडमी की तरह से हम ये स्टेप करके एक एकेडमी बनाई है जो कि इस तरह के यूथ को जो टारगेट थी, जो कि थोड़ा माइग्रेशन के थ्रेशोल्ड पर हैं या अभी एंटर ही हुए हैं मार्केट में, वो सेटल नहीं हो रहे हैं, उनको कैसे नई स्किल्स दी जाए। तो लगभग करीब 16,000 यूथ, और इसमें महिलाएं का प्रतिशत कम है क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को लोकल लेवल पर ही किस तरह के अवसर हैं उस तरह की ट्रेनिंग हमने दी है। लेकिन करीब 16,000 युवक युवतियों को, जिसमें युवकों की संख्या ज़्यादा है, उस तरह की ट्रेनिंग से हमने जोड़ा है। जैसा हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों पे, कोई भी इमरजेंसी की ज़रूरतों पर अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर रहते हैं या अपने एम्प्लॉयर्स पर निर्भर रहते हैं, और उनके लिए फॉर्मल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बैंक्स उनको, क्योंकि मोबाइल पॉपुलेशन है, कभी उन पर ट्रस्ट नहीं करती और कभी उस तरह की सर्विसेज उन तक पहुँचती। तो आजीविका ब्यूरो ने सेक्शन 25 एक बनाकर जिसका नाम शमसार थी, हमने किस तरह की सेविंग को प्रमोट करने के लिए और किस तरह की क्रेडिट जरूरत माइग्रेंट हाउस होल्ड्स की है, उसके अनुसार कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन करके, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स से उधार लेकर उसके एक बॉन्डेज सिस्टम में ना पड़े, उस तरह का एक फाइनेंशियल सर्विसेज का काम हम लोग करते हैं। डेस्टिनेशन पे, क्योंकि आजीविका ब्यूरो दोनों ही एंड पर, सोर्स पे भी काम है और ये डेस्टिनेशन पे काम है, अगर दोनों एंड पर इस पूरी साइकिल को समझने के लिए और एक पूरे माइग्रेशन की में एक कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन देने के लिए उस एंड पर भी काम करना जरूरी। तो कई सारी सर्विसेज हमारी, जैसे स्किल की बात की मैंने और लीगल की उस तरह की सर्विसेज डेस्टिनेशन पे भी हैं। और अभी हमारे जो सेंटर्स हैं गुजरात में ज़्यादा हैं, एक महाराष्ट्र में अभी है, बेंगलोर में अभी बहुत अभी रिसेंटली हमने शुरू किया है। तो उस तरह का के डेस्टिनेशन पे भी हमारा अपना काम है। इस पूरी वर्कफोर्स में भी जैसे महिलाएं, क्योंकि राजस्थान के और सदर्न राजस्थान से जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ से फैमिली माइग्रेशन है, वहाँ परिवार के परिवार माइग्रेट करते हैं, महिलाएं भी माइग्रेट करती हैं, बच्चे भी माइग्रेट करते हैं। तो उस पूरे मार्केट में महिला वर्कर्स की अपनी क्या विशेष स्थितियां हैं, विशेष पीड़ाएं हैं, विशेष कंसर्न है, उन पे आजीविका ब्यूरो उसको समझ रहा है और किस तरह के इंटरवेंशन उनके साथ हो सकते हैं, एक तरह से उनकी सेफ, सिक्योर और डिग्निफाइड उनके अपने एक माइग्रेशन को बनाने के लिए। और चाइल्ड माइग्रेशन, कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं यहाँ के बच्चों का भी, खासतौर से अगर हम अपने एरिया में देखें तो खाने बनाने के काम में काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ भी किस तरह से इंटरवेन किया जाए जिससे कि कम से कम बच्चों को इस तरह के माइग्रेशन के साइकिल से ऊपर जा सके। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि काफ़ी सारे आजीविका ब्यूरो की जो भी सीख बनी, जो समझ बनी, उसको हमने एक तरह से एक बड़े और जो स्टेट्स हैं जो हाई माइग्रेशन वाली सेंडिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ इस काम को, हमारे अनुभव को बांट कर वहाँ किस तरह के और विकल्प खड़े किए जा सकते हैं, किस तरह की सर्विसेज के उन स्टेट्स में भी काम किया जा सकता है। तो एक पूरा टाटा ट्रस्ट के मार्फत से करीब 10 साल पहले ये काम शुरू किया था। तो 9 स्टेट में 44 डिस्ट्रिक्ट्स में 22 एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन सिटीज और टाउन्स में हमारा अपना काम था। तो उस तरह का हमने काम शुरू किया और एक तरह से अलग अलग तरह की फॉर्म्स में एक जो हमारी पूरी अपनी यूनिट है, जो नॉलेज एंड रिसर्च की यूनिट है CMLS, उसने इस काम में ट्रेनिंग का देने का काम है, इस तरह के सेंटर्स को स्थापित करने में, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में उसको बढ़ाने का काम किया। और एक बहुत बड़ा जो काम हमारा रहा कि जो इंटरनल माइग्रेशन इतनी बड़ी स्केल पर हो रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पहले लिटरेचर नहीं था, बहुत ज़्यादा एक तरह से रिसर्च नहीं था। और तो
उस पे एक काफ़ी माइग्रेशन के ट्रेंड्स पर, माइग्रेशन के कॉरिडोर्स पर, स्टेट की माइग्रेशन प्रोफाइल्स पर, माइग्रेशन की डेप्थ, हाउसिंग को लेकर है, अर्बन गवर्नेंस को लेकर है, अलग अलग तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको लेकर आजीविका ब्यूरो ने, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उस तरह का भी लगातार काम हमारी एक जो CMLS सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड लेबर सॉल्यूशंस जो एक रिसर्च एंड नॉलेज यूनिट है वो काम करती है। तो 2 स्टेट की तो हमने एक तरह से स्टेट प्रोफाइल पे भी काम किया है। तो ये एक तरह से आजीविका ब्यूरो का जो एक और काम है, जो कि दोनों एंड पर ही है, सोर्स पे भी काम करते हैं, डेस्टिनेशन पे भी काम करते हैं। उसके साथ ही जब कोविड 2020 में जब कोविड की पहली लहर आई और जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस माइग्रेंट वर्कर्स को हुआ, तो 2-3 तरह के हमारे इंटरवेंशन हुए। एक तो हमें लेबर लाइन होने से हम बहुत एक बड़ी संख्या माइग्रेंट वर्कर्स की जो स्टैंड अलग अलग तरह से अलग अलग शहरों में हो गए थे, उनकी मदद कर पाए। तो मैं कहूँगा कि करीब हम उस समय करीब महीने भर का ही मैं वो मानता हूँ पीक समय, और महीने भर से भी 20 दिन का पीक समय था। करीब 30,000 कॉल्स हमारी लेबर लाइन पर उस समय आई, और वो नंबर बहुत स्प्रेड हुआ। और हम सिर्फ लेबर लाइन के मार्फत जो अलग अलग स्टेट्स द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन, फूड और राशन डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट किया, उससे हमने करीब 1 लाख वर्कर्स को लिंकेजेस किया। एंड हम काफ़ी कैश ट्रांसफर्स जो कहीं पहुंच भी नहीं सकते थे, कहीं निकल नहीं सकते थे, तो करीब 1500 वर्कर्स तक हम करीब 1,20,000 कैश ट्रांसफर, राशन ही नहीं, जहां उनके लिए राशन की दुकानों तक पहुंचना मुश्किल था या किसी और तरह से डिपेंड थे, तो उनको हम इतना कैश पहुंचा सके। और उस समय और उसके बाद भी करीब लेबर लाइन पर 1600 के लगभग 1667 के करीब केसेस हमारे लेबर लाइन पर रजिस्टर्ड हुए, उनमें हमने फैसिलिटेट किया, जिससे कि 1700 मजदूर करीब जुड़े हुए थे। और हमने उस समय एक तरह से उनकी जो भी चाहे पेमेंट की दिक्कत थी या किसी और तरह की दिक्कत थी, उन केसेस में हमने इंटरव्यू किया। एक जो कोविड अनलॉक के समय है, अनलॉक के समय, क्योंकि अनलॉक धीरे धीरे अलग अलग फेजेज में हुआ और वर्कर्स की डेस्परेट नीड थी कि वो वापस अपने डेस्टिनेशन तक लौटे, क्योंकि गांव में जितना भी उधारी कर कर जीवन अपने गुजारा कर सकते थे वो किया लोगों ने, लेकिन एक समय बाद में उनकी बहुत डेस्परेट नीड थी कि वो वापस काम पर लौटे और काम तक आए। वो करीब 6,000 के करीब, लगभग 6,000 के करीब वर्कर्स को हम लोग अपने काम पे वापसी के लिए मदद कर पाए। आपको याद होगा, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, हमने गंजाम जो उड़ीसा से सूरत के लिए एक पूरा पावरलूम एक्सप्रेस 1300 वर्कर्स को लेकर एक ट्रेन सूरत लेकर आई, और उनको जो कि वहाँ एक तरह से बहुत रुके हुए थे और मजबूर थे, न आ सकते थे, किराया नहीं था, किराया ट्रेनें नहीं चल रही थी, तो स्पेशल ट्रेन हमने ऑर्गेनाइज की और किसी एजेंसी के मार्फत सहयोग से, और उन तक हम आ पाए। उसके अलावा क्योंकि हमने एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम की, BHS बेसिक हेल्थ सर्विसेज, जो हमारे मित्र हैं उसको चलाते हैं, उसके मार्फत हम उस समय भी काफ़ी 10,000 पेशेंट्स तक हम अपनी सेवाएं दे पाए, उनकी थोड़ी जांचें कर पाए, उनकी कुछ और तरह की, क्योंकि बीमारी हालत में उस समय बिल्कुल आना जाना बंद था, किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो हमारी जो फील्ड में अब क्लिनिक चलती हैं उसके मार्फत हम मजदूरों की हेल्थ की सोर्स पे, क्योंकि ये क्लिनिक्स हैं जो सोर्स पे काम करती हैं, उस सोर्स पे हम लोग इन क्लिनिक्स को चला सके, इसके मार्फत हम इतने मजदूरों और उनके परिवारों को मदद कर सके। और हमने उस समय धीरे धीरे ये कोशिश की कि रिलीफ के काम को भी हमने एक तरह से कम्युनिटी एसेट्स की तरह से डेवलप करने की स्ट्रेटजी अपनाई, कि
वर्कर्स यही हैं, माइग्रेंट वर्कर्स यही हैं, तो उनको रिलीफ का काम भी दिया जाए। वो ज़रूर तो है उनको रिलीफ, और राशन की ज़रूरत है और तरह की ज़रूरत है, तो उसके मार्फत कैसे उनके एसेट्स को भी बनाया जाए। तो लगभग 30 ऐसे सूखे कुएं थे उनके अपने, जिसमें कि पीने तक का पानी था। वहाँ काम हुआ और आज वो लोग उन कुओं से करीब काफ़ी फैमिलीज जो हैं वो पानी वहाँ से पी रही है। स्टेप के मार्फत काफ़ी यूथ को हम लोग ट्रेनिंग दे सके उस समय, ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सके, जिससे और एंटरप्राइजिंग ट्रेनिंग दे सके कि जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ आ गए थे, जो लोग वापस लौटना नहीं चाह रहे थे, वो लोकल लेवल पर किस तरह का एंटरप्राइजिंग काम कर सकते हैं। तो उस तरह के 40 एंटरप्रेन्योर्स को, इसमें महिलाएं भी थी, मतलब उस परिवारों को हमने दिया, और उनको हम एक एंटरप्राइजिंग लोन जो श्रम साथी के मार्फत हम दे पाकर उस तरह की मदद कर पाए। सेकेंड फेज में, क्योंकि ज़्यादातर एक तरह से मेडिकल क्राइसिस थी, ज़्यादातर लोग बीमार हुए, ऐसी फेज में हमने 4 तरह के पूरे एक स्ट्रेटेजी हमने अपनाई। एक तो पूरा का पूरा प्रिवेंशन की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कैसे बचे रहें, उस तरह का प्रचार प्रसार हमारे बहुत बड़ी वॉलंटियर्स के मार्फत हमने किया। फिर क्योंकि उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी इस बार ग्रामीण एरिया में ये कोविड का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, तो होम केयर, क्योंकि लोगों का किसी भी सरकारी सेवा तक पहुंचने का न तो ट्रस्ट था और न जाने की उनकी क्षमताएं थी। तो कैसे होम केयर को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और वहीं एक तरह से एक मेडिसिन किट देकर लोग अपने घरों पर ही रहकर अपना इलाज कर सकें। और तो एक तो उस तरह का हमने काम किया। दूसरा, होम केयर के साथ साथ जो ज़्यादा सीरियस केस अगर आते हैं, अगर ज़्यादा सीरियस बीमारी किसी को होती है, तो करीब हमने 3 कोविड केयर सेंटर स्थानीय हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने शुरू किए, और वहाँ हम ज़्यादा सीरियस केसेस को भी ट्रीट कर पाए। करीब 200 वॉलंटियर्स हमारे अलग अलग प्रोग्राम से जुड़े हुए, उनके मार्फत हम 8000 हाउस होल्ड तक पहुँचे, और 2000 हाउस होल्ड्स को हम एक मेडिसिन किट्स दे सके, जो कि हमें 8000 में से बीमार मिले, और आशा श्रोमणी जो कि उन ब्लॉक्स में थे उनके साथ ट्रीटमेंट। कोविड सेंटर में करीब 150 पेशेंट्स को हम लोग इन कोविड सेंटर्स पर एडमिट करवा पाए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ। किसी और तरह की डिस्ट्रिक्ट या उस तरह के हॉस्पिटल्स में उन्हें जाने की जरूरत नहीं। और भी ज़्यादा किया जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं व्यवस्थाएं करते करते काफ़ी समय इन सब चीज़ों में लगा। और कम्युनिटी अवेयरनेस का काम लगातार अभी भी, क्योंकि थर्ड वेव की अभी भी संभावना है, तो कैसे ऐसे हाउस होल्ड्स में जो कि दूर दराज हैं, बिखरे हुए हैं, वहाँ लोग अपने आप को कैसे बचाए रखें। और साथ के साथ ही आप देखेंगे कि वैक्सीन को लेकर जिस तरह की भ्रांतियाँ और अफवाहें हमारे देश में और खासतौर से इस कम्युनिटी में फैलती हैं, तो उससे बहुत कुछ एक तरह से वैक्सीन को लेकर काफ़ी विरोध था। तो उसके प्रति कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे उनको अवेयर किया जाए, जिससे कि वो प्रिवेंशन के माध्यम के तरह से वैक्सीन को भी अपनाएं। तो फाइनली है कि एक तरह से जो एक इकोनॉमिक सिटीजनशिप है, उसको एक वैलिड ह्यूमन राइट्स की तरह से, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की तरह से माना जाए। और कोविड के बाद 2 तरह की हमारी अपनी समझ में है कि इंडस्ट्री है, जब तक इंडस्ट्री खुद अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए खुद अकाउंटेबल नहीं बनेगी, तब तक हम बहुत ज़्यादा वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को और वर्कर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं ला सकती। तीसरा, माइग्रेंट वर्कर्स की एजेंसी एक तरह से कहते हैं कि एक जरूरी, एक महत्वपूर्ण उनका अपना मोबिलाइजेशन का एक स्ट्रेटजी है, और एक तरीका है कि वो मोबिलाइज हों और अपनी इनकी डिमांड करें। तो ओवरऑल ये हमारे आजीविका के अब तक के इंटरवेंशंस और किस तरह के काम हमने किए और कोविड के बाद क्या हम किए, ये एक काम की अपनी प्रस्तुति थी। थैंक यू।
समय दिया आपने और हमें सुना, और जो भी सवाल जवाब है आपके हमें। Thank you so much, Krishna Tarjit, for a very detailed uh, presentation of not only of the causes of the migration, but also जो पिछले साल जो आप लोगों का स्पेशल काम रहा उसके लिए भी. What I will do is I will invite Narendra Paul ji to engage with all of us in a particularly Krishna Avatar ji in a conversation. Narendra Paul ji, I'll give a very short introduction. कई लोग जानते भी होंगे. Mr. Narendra Paul is the Chief Operating Officer of the Chinmaya Organization for Rural Development. He is based in Sidhbadi in Himachal Pradesh. Narendra ji is a occupational therapist initially by training, but has acquired many other degrees in developmental sciences, and he's a development professional since almost 20 plus years now, predominantly working in a range of integrated rural development schemes through his organization in many states. Many of his work also involved, their organization's work involves migrants also. And I thought rather than just a presentation, it would be good to have somebody who's also working in that space to engage in a dialogue with Krishna Avatar ji. And there are many people in the audience who may have questions. आप भी chat पे लिखिए, चाहिए तो आपको बोलना है तो you can also unmute yourself later on. But I will invite Narendra ji to have a sort of a dialogue with Krishna Avatar ji, so we can get a little more insight and deeper view as well. Over to you, sir. Thank you, Chaitanya ji. Thank you, Stars, for this opportunity. And Krishna Avatar ji, thank you very much for enlightening us. It's a more of like, not only a comprehensive view. You have not flagged the problem, but you have simultaneously came up with the solution. What your organization is doing the wonderful work. कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होना चाहिए. तो मैं आपसे थोड़ा इस चीज में और जानने की कोशिश कर रहा था. मैं ये सोच रहा था कि लगभग जैसे हम देखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 करोड़ से 20 करोड़ के करीब, क्योंकि ये सारा इनफॉर्मल डाटा है, कहीं से फॉर्मल डाटा नहीं है. और डाटा आई थिंक इज of very crucial importance in all types of policy programs, designing welfare programs and everything. तो आपको कैसे लगता है इसमें कि क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हर 10 साल के बाद सेंसस का डाटा होता है और हाउस होल्ड का काउंट भी होता है एक तरह से, तो क्या इस माइग्रेट काउंटिंग पहले एक डाटा, एक प्रॉपर डाटा होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता सेंसस के साथ? ये मेरा उस पर थोड़ा आपका विचार जानना चाहूंगा मैं. बिल्कुल सही आपने नरेंद्र जी सवाल किया है कि ये ऑथेंटिक डेटा जो है ना, ये तभी आ सकता है जब वो किसी भी एक सरकारी सर्वेक्षण का भाग बने, है ना. अब NSS है या हमारा जो दूसरा सर्वे होता है ना, तो ये दोनों ही अभी इस पूरी पॉपुलेशन को सही तरीके से कैप्चर नहीं कर. हमारी कोशिश रही कि कैसे ये जो हमारा अपना सर्वेक्षण होते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा वाइडन किया जाए और इस तरह की पॉपुलेशन, इस तरह की मोबाइल पॉपुलेशन को भी इसमें शामिल किया जाए. लेकिन ये अभी सरकार के अपने कहते हैं कि प्राइम एजेंडा बनाने की इस तरह की पॉपुलेशन को वो, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप इस डेटा को कैप्चर करेंगे और उसको ज़्यादा मोर ऑथेंटिक तरीके से करेंगे तो फिर इस पॉपुलेशन के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी, एक लाइबिलिटी भी आपकी बनती है ना. तो अभी तो सरकार वैसे ही बच रही थी. आपने देखा होगा कि पेंडेमिक पहले तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा इसको इनविजिबल, है ना, देखते हुए भी अनदेखी करने वाला पूरा था. तो डेफिनेटली अगर इसको किसी भी सेंसस में या NSS का अपना जो सर्वेक्षण है, अगर वो ही इसको शामिल करें तो इसका एक ऑथेंटिसिटी इसकी बनती है. बाकी हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का एक इनफॉर्मल डेटा सामने लाती रहेंगी, वो भी अपने आप में ज़रूरी है. वो भी एक तरह से
सरकार पे या इस तरह की एजेंसीज पे दबाव बनाती है कि वो इस तरह की डेटा को कैप्चर करें। जी, मैं ये अनुभव इससे भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम डिसेबिलिटी जो एक माइग्रेंट की तरह ही एक इनविजिबल पॉपुलेशन रही है भारत में। जब शुरू में उसका एक तरह से आकलन होता था तो वो 3% पता नहीं क्या था कि क्यों 3% रिजर्वेशन दिया। तो इंडिपेंडेंट आजादी के बाद अगर देखा जाए, अभी हमने 15 अगस्त अभी अपना एक तरह से सेलिब्रेट किया है 75वां, तो 2001 की जनगणना में पहली बार उसके लिए बहुत कलेक्टिव एडवोकेसी हुई। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा डोमेन है एडवोकेसी का कि एवरी माइग्रेंट वर्कर जो देश के निर्माण में इतना काम करते हैं, इतना योगदान देते हैं, वो इतने इनविजिबल रह के मतलब उनका काउंटिंग तक और उनका वेलफेयर और जिस तरह से आपने चीजें जो हाईलाइट की, आई थिंक एक कलेक्टिव एडवोकेसी के ऊपर अगर हम जाएं तो मुझे लग रहा है कि एक सेंसिस रजिस्ट्रार के सामने, क्योंकि मुझे इसमें मौका रहा है पिछले 15-20 साल पहले काम करने का। सेंसिस रजिस्ट्रार के साथ पहले वो 14 नंबर का क्वेश्चन होता था डिसेबिलिटी का, उसको 9 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया, पीछे लाया गया ताकि उसकी काउंटिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो शायद मुझे एक लगा कि एक जब आपने बताया और जो ग्रेविटी है इसकी, उस तरह से मुझे लगता है कि ये जरूर होना चाहिए, उसके लिए हम सब प्रयास कर सकते हैं। जी, और दूसरा आई थिंक मैं एक आपका आरपी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था, और जो उस आर्टिकल का टाइटल जो था कि लेबर इन लेबरर माइग्रेशन, कि जो लेबरर होते हैं जो माइग्रेट करते हैं उनकी कितनी लेबर होती है खुद की, राइट फ्रॉम जो आपने सिचुएशन बताई, कहाँ रहना है, कैसी कंडीशंस में वो रहेंगे, वो वेजेस कैसे मिलेंगी नहीं मिलेंगी। आई थिंक इट्स मतलब उसको सोचना भी अपने आप में एक जो है कि जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, एक तरह से कोई ठिकाना नहीं है, उसके बावजूद पूरे के पूरे परिवार माइग्रेट करते हैं। और कोविड टाइम्स में तो हमने ये बहुत देखा। मेरा इसी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आपको, क्योंकि भारत में ज्यादातर हम जब माइग्रेशन की बात करते हैं तो रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात करते हैं कि गांव से लोग ज्यादा जाते हैं, और जो मुझे थोड़ी समझ है और जितना इस पे मेरी सोच रही है, आई थिंक एक एसेट्स की कमी, मतलब और उसमें भी लैंड, आई थिंक लैंड रिफॉर्म्स को आप कितना जरूरी समझते हैं कि ये लैंडलेस लोग हैं ज्यादातर, जो जिन राज्यों से अगर हम देखते हैं वहां भी लैंडलेस का परसेंटेज बहुत हाई है, तो वो कितना जिम्मेवार है, और लैंड रिफॉर्म्स भी इससे कितना जुड़ा हुआ है कि उसकी तरफ भी हमें कितना सोच और दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है। नहीं, डेफिनेटली नरेंद्र जी, आपने मूल प्रश्न पर ये एक मूल हकीकत है उस पर ये सवाल खड़ा किए, मतलब पूछा है, क्योंकि ये जो डेस्पेरिटी है, जो डिस्ट्रेस है लोगों का, एक तो शुरुआत में वही लोग माइग्रेट हुए जो कि लैंडलेस थे, और जो इन शहरों में जाकर स्लम्स में बसे, स्लम्स में का एक हिस्सा बने, वो लोग थे जिनका गांव में कोई फिर ऐसा कोई लैंड नहीं था। आज वही लोग, ये सीजनल माइग्रेशन उन्हीं लोगों का बना हुआ है जिनके पास अभी भी गांव में कुछ न कुछ लैंड ऑफ पीस है, कोई न कोई उनके पास जमीन का कोई टुकड़ा है। तो लेकिन अब आप जानते हैं कि आज के समय में ये पूरा का पूरा लैंड रिफॉर्म्स का जो काम है, देखिए इन एरियाज में अगर हम हिस्ट्री को देखें, इतिहास को देखें, कि जो भी ट्राइबल एरियाज थे, उनके जो कॉमन रिसोर्सेज थे, फॉरेस्ट था, कॉमन लैंड्स थे, धीरे धीरे उन्हें भी सरकार द्वारा अपने उसमें है ना हिस्से में ले लिया है। तो लोगों के पास लैंड रिफॉर्म्स के तो छोड़े, जो उनके अपना अधिकार था, जिनके पे डिपेंडेंट थे, उन्हीं को ही सरकार द्वारा अपने अधिकारों में लेकर इन्हें वहाँ से डिसलोकेट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ, आपने सही कहा कि अभी भी जैसे जहाँ लोगों के पास थोड़ी बहुत भी ज़मीनें हैं, और ये लॉकडाउन से पहले भी हमारी ये समझ धीरे धीरे बनी कि हमें अभी भी जितनी लोगों की एग्रीकल्चर ज़मीन है, उसमें जो एग्रीकल्चर की पोटेंशियल है, उसको थोड़ा सा मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे कि कम से कम एक उनकी डिस्ट्रेस को थोड़ा कम किया जा सके, एक चॉइसफुल माइग्रेशन बनाया जा सके। और अगर लैंड में किसी तरह का और रिफॉर्म्स होता है तो उससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। आपने एक्चुअली बहुत ही एक, मैं ये देखता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश का ही, क्योंकि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, और एक चीज देखी है कि हिमाचल में कोई भी लैंडलेस नहीं है, जो मैं एक चीज देखता हूँ। तो मैं ये देख रहा था कि और कोशिश भी कर रहा था कि हिमाचली लोग माइग्रेट करते हैं, आपको मतलब मैं ये बताऊंगा कि आर्मी और इसमें जो बहुत लोग और हर जगह पे,
और इवन मेरे भी कई बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो दिल्ली में अगर जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में करते हैं, चाहे दूसरी जगह के लिए करते हैं, चाहे कुछ अपना प्राइवेट काम करते हैं, फिर भी उनके पास घर में अगर जमीन का एसेट है तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए सपोर्टिव एक वो रहता है। तो उनके, मुझे लग रहा है कि उनके लिए माइग्रेशन, जो आपने एक इशू अभी बताया, बात की कि एक अपॉर्चुनिटी और चॉइस है, ना कि कंपल्शन है। ये यहाँ तो ज्यादातर जो आपने जिस वर्ग की एक तरह से बात की, जो देश का इतना बड़ा वर्ग है, वो उनके लिए तो कंपल्शन है, उनको तो जाना ही पड़ेगा, उनके लिए रोजी रोटी का सवाल है, उनके लिए चॉइस या एक डिग्निटी का भी एक वो संदर्भ नहीं इसमें रह जाता है उनके लिए। हमें सोचना पड़े, हमें बात करनी पड़ेगी कि उनको डिग्निफाइड लाइफ कैसे जिए और किस तरह से हेल्थ और हाइजीनिक उनकी कंडीशन जो अच्छी रहे। इसी से मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अब तमिलनाडु में काम करते थे, मुझे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आ रहा है, जहाँ ईशा योग के बहुत पीछे बहुत सारी जमीन है, और लोग जो है तमिलनाडु में, लोग फार्मर कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे देश के बड़े फार्मर्स हैं वो जमीन को लेबरर को ही देते हैं। तो वहाँ एक झारखंड से एक फैमिली थी, वो वहाँ पे खेती कर रही थी फूलों की। तो मैंने उनसे जब हमने संवाद किया तो हमने कहा कि आप इसमें सोलर फेंसिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा है और सरकार लीज लैंड पे भी आपको दे सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक परत से जब दूसरी परत खुलने लगती है तो तब असलियत का पता लगता है कि सरकार के कितने बनाए हुए प्रावधान भी होंगे, सुझाव भी होंगे, उनको लीज पे लोन भी मिल सकता है बैंक से, लेकिन उनके पास कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। क्योंकि अगर एग्रीमेंट करने जाएंगे तो लीज, जो लैंड लीज वाला है उनको भगा देगा, और वो तो उनको कभी जमीन मिलेगी नहीं, क्योंकि फॉर्मली एग्रीमेंट में कोई जाएंगे नहीं। तो ये मुझे लगता है कि इतनी डीपली इंट्रेंच्ड है और इतना एक्सप्लॉयटेटिव भी है बहुत सारे स्तर पे कि, और उनका 100% रिस्क है। अगर वो फ्लावर अगर नहीं बिकेगा या हाथी आके पूरा डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा तो इट इज टोटली लॉस, देयर इज नो कंपनसेशन, दे अगेन हैव टू गो फॉर इट। यहाँ हम देखते ही है ना कि भाई हमारे जो रेनफेड एरियाज हैं या ऐसे एरियाज हैं जहाँ खेती पे बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंडेंस बन नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी बारिश पर निर्भर है, आपके मौसम पर निर्भर है। तो ऐसी और ज़मीनें वैसे ही सब बहुत कम है लोगों के पास। अगर वो उसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट भी करें तो भी साल भर की जो दोनों ही फूड की रिक्वायरमेंट है और दूसरी जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो बहुत पूरी हो नहीं सकती। मेरा एक और जुड़ा हुआ प्रश्न था, क्योंकि मैं एक राज्य सरकार की एक मीटिंग में था, तो वहां मुझे ये चीज का पता लगा, एक वहां ऑफिशियल थे, उन्होंने बताया कि लेबर के इसमें जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के या कोई भी, इवन जो ठेके जो सैंक्शन होते हैं, उसमें एक कुछ सेस जैसा कुछ काटा जाता है पैसा, जो लेबर वेलफेयर के लिए जाता है गवर्नमेंट के पास, और दैट फंड ऑलवेज रिमेन अनयूटिलाइज्ड, जो मुझे पता लगा। शायद आप इसमें ज्यादा काम करते हैं, आप एक तरह से आपको पता होगा। और वो फंड्स को निकालना, क्योंकि यहाँ हिमाचल में हमने देखा था, उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि जब इलेक्शंस आने लगे तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, किसी को गैस देना शुरू कर दिया, किसी को साइकिल देना शुरू कर दिया, और पता लगा वो लेबर फंड का पैसा आ रहा है। तो इट वाज लाइक लेबर वेलफेयर को कितना पैसा जाता है, जबकि हर उसमें जो एक तरह से गवर्नमेंट के उसमें उसको सुनियोजित तरीके से, मुझे लग रहा है किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है और क्या उसकी प्रक्रिया हो सकती है, अगर उस पर थोड़ा सा अगर आप अपने विचार रखें। नरेंद्र जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया, मतलब पूछा है ये। देखिए, अभी तो सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन, है ना, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना, वेलफेयर बोर्ड POCW करके एक कानून के तहत हर स्टेट को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाना था, और इस बोर्ड के लिए जो रेवेन्यू जनरेट होना था 1% सेस, तो जो भी 10 लाख से ज़्यादा की बिल्डिंग बन रही है उससे 1% सेस इकट्ठा करके, और वो जो राशि है वो इन वर्कर्स के, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अलग अलग तरह के वेलफेयर के लिए, तो हेल्थ है, इंश्योरेंस है, आई थिंक सब तरह के उसके लिए जाएगा। बिल्कुल, कई सारी है, उसमें मैटरनिटी भी है, अगर महिला वर्कर, शादी के लिए उनकी गर्ल्स की, गर्ल्स की शादी के लिए है, उसमें स्कॉलरशिप भी है, है ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। तो ये सब स्कीम्स बनाकर सरकार को इन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करना था। लेकिन विडंबना ये है नरेंद्र जी की, सरकार का कोई इसमें इस तरह की स्कीम्स को बनाकर वर्कर्स को तक पहुंचाने का, उनको रजिस्टर्ड करने का। हम गुजरात में काम करते, राजस्थान स्टेट ने फिर भी इसमें, क्योंकि हम लोग हमारी होम स्टेट है, तो हम बहुत कुछ POCW में
वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करवा पाए और अच्छा खासा वर्कर्स को इसका बेनिफिट भी मिला। कई स्टेट्स ने अभी लॉकडाउन के समय POCW में रजिस्टर्ड लोगों को पेंडेमिक के समय कैश ट्रांसफर्स भी किए, जो कि काफ़ी मददगार हुए। लेकिन कई ऐसे जो स्टेट है जिसमें कि करोड़ों रुपए, गुजरात जैसी स्टेट है, करोड़ों रुपए उनके पास इस तरह के बोर्ड में है, लेकिन अनयूटिलाइज्ड, विच इज अनयूटिलाइज्ड। कोई इच्छा शक्ति, राजनीति कोई इच्छा नहीं। शक्ति नहीं है कि वो उसको यूटिलाइज करना चाहें। वेरी ट्रू। और इसमें मैं एक चीज सोच रहा था कि हम जैसे पंचायतों की बात करते हैं, अब हमारे पूरे देश में अगर देखा जाए लगभग 2,60,000 पंचायतें हैं, ग्रामीण भारत की अगर मैं बात करता हूँ, अगर उसमें ही देखते हैं, और ज्यादातर माइग्रेशन की जब बात होती है ग्रामीण से शहरों की तरफ की ज्यादातर बात होती है, तो मैं एक चीज देख रहा जैसे हमारे संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, उसमें एक स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, और एक कंकरेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि माइग्रेशन क्या किसका कंसर्न है, इज इट अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों को सोच के करना चाहिए, क्योंकि कानून भी जो बने हैं शायद अभी वेलफेयर के नाम पे या वर्कर को प्रोटेक्शन के नाम पे हम बोलते हैं कि 10 या 12 या 15 तरह के कानून हैं जिनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, चाहे वो EPF या दूसरी तरह की चीजों के तहत। पर मुझे लग रहा है कि कितना किसका हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली इट इज। देखिए वही है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें कि स्टेट भी अपने कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कानून होते हैं। तो देखिए वैसे तो क्योंकि ये जिस तरह का एक नेशनल फिनोमिना है ना, इसके लिए भी कुछ बेसिक कानून तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पूरे काम के लिए बनाने चाहिए, जिसको कि थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट कम से कम उस तरह से फॉलो करे। अदरवाइज कोई भी एक गाइडिंग ऐसी एक प्रिंसिपल एंटिटी नहीं होगी तो फिर स्टेट अपने कहते हैं ना कि जैसे कैपिटल को प्रमोशन की दृष्टि से फिर वो लेबर्स के बारे में उतना नहीं सोचेंगे। तो जो स्टेट्स ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती हैं, वो फिर जाहिर सी बात है कि वो वर्कर्स के लिए उनका कंसर्न इतना नहीं होगा। तो अगर हम कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी 4 कोड सभी कानूनों को मिलाकर उन्होंने किया है कि वो बड़े लिबरलाइज, थोड़े से ज़्यादा वर्कर्स के फायदे के होंगे। लेकिन देखिए कानून तो पहले भी थे, ये भी बन जाएंगे, लेकिन कानून को एनफोर्स करवाने वाली जो एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ही आज इन सब डिपार्टमेंट से सबसे निचले पायदान पर डिपार्टमेंट, सबसे रिसोर्स क्राइसिस वाला डिपार्टमेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुश्किल से अधिकारी उनके बैठते हैं, अदरवाइज कोई उनका नेटवर्क नहीं है। तो आप कानून भी बना दें लेकिन उनको एनफोर्स करने वाली एजेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखेंगे कि वो पूरा जो इंस्पेक्शन वाला जो पूरा प्रोविजन था उसको खत्म करके फैसिलिटेटर बना दिए गए उनको, है ना। तो जो पहले इंस्पेक्शन कर सकते थे, इंडस्ट्री में एक इंस्पेक्शन का डर था कि वर्कर्स क्या कंडीशन में रह रहे हैं, कितना वेजेस मिलता है, कोई भी अधिकारी लेबर ऑफिसर जाकर कर सकता था। अब वो फैसिलिटेटर है, वो इंस्पेक्शन नहीं कर। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं देख रहा था, आपके टोल फ्री नंबर जो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में 1800 जो किया हुआ है, क्या ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर का भी, अगर कोई भी मजदूर किसी भी देश के कौन, ऐसा कोई टोल फ्री नंबर नेशनल लेवल पे भी कुछ है, या राज्यों अलग अलग राज्यों में भी कुछ है ऐसा? रेलेवेंट क्वेश्चन। देखिए अभी नहीं, मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं। अभी इसी कोविड के समय इसी तरह की सक्सेस को देखकर राजस्थान में हम और गुजरात में ज़्यादा इस पूरे हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार था। अभी हमने WPC वर्कर्स पीपल्स चार्टर्स और कुछ और एजेंसीज ने मिलाकर अभी 5 स्टेट्स में पहले फेज में, गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव जी। 5 स्टेट में अभी इस तरह की हेल्पलाइंस, जिसको इंडिया लेबर हेल्पलाइन के नाम से हमने शुरू की है। तो अभी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में तो हम हैं ही, और दिल्ली में। तो अभी पहले फेज में उन 5 स्टेट्स में इसको शुरू कर रहे हैं। मे भी आने वाले सालों में फिर 10 स्टेट्स में हो जाएगी। आई थिंक ये तो एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पे ही इट हैज टू बी, आई मीन दिस इज लाइक
ये एक तरह से जैसे आपने पूरा मैप में भी अपना दिखाया था किस तरह से जो विद इन कंट्री हमारा जो अपना माइग्रेशन एक तरह से होता है, वो भी एक बहुत बहुत मदद करेगा काफी लोगों को, आई थिंक कहीं ना कहीं से मूव करने में। और पूरा जो एक तरह से जैसे आपने एक जो फ्लैग किया इशू की, जो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंटरेस्ट होता है, दैट एक्चुअली जो कैपिटल का जो है दैट टेक्स ओवर, वो दैट एक्चुअली सुपरसीड द लेबर इंटरेस्ट, और इस तरह से काफी एक चैलेंजिंग रहता है। मैं एक लास्ट में आपसे थोड़ा सा, मैं अभी क्योंकि समय का एक तरह से अभाव नहीं, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं तो आपसे 2 घंटे भी और सीखने के लिए कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसमें अगर मुझे लगता है कि अगर आपके इतने सालों का जो अनुभव है उसके आधार पे अगर आप कहना चाहें, तो एक सपोज एक लेबरर भी हूँ, राइट, तो उस स्तर पे मुझे किन किन एक बेसिक चीजों के लिए अगर मैं जागरूक रहूं ताकि मैं एक एक्सप्लॉयटेटिव होने से भी बच जाऊं, और दूसरा है कि समाज को अपनी अपनी तरफ एक तरह से सेंसिटाइज भी कर सकूं कि ओके, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आई हैव अ रोल टू प्ले इन, और आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन द डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन अ ग्रोथ ऑफ नेशन और समाज के उसके लिए। हमारे यहाँ पे एक चीज होती है, हमारे यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है वो लेबर बिहार से भी होती है, उत्तर प्रदेश से भी होती है, अलग अलग तरह से होती है। और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि उसको बोलते हैं मिस्त्रियों के घर नहीं होते, मतलब दे कंस्ट्रक्ट हाउस फॉर अदर्स बट दे नेवर दे देमसेल्फ डोंट हैव हाउस। तो उसमें आप मतलब क्या सुझाव देंगे कि एक तरह से एज अ लेबरर भी अगर मैं हूं तो मैं कम से कम मतलब एक्सप्लॉयटेशन से बच सकूं, कि मैं किस चीज के बारे में अवेयर रहूं, कम से कम 2-4 चीजें मुझे अच्छे से अपने लिए पता हो, और साथ में समाज को कैसे सेंसिटाइज करके आई कैन मेक बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल ये है। देखिए, वर्कर्स की दृष्टि से 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो है कि एक तो अभी बहुत कुछ ओरली वर्कर्स ट्रस्ट करता है, तो एक तो वो अपने काम का, अपने एम्प्लॉयर्स का, अपनी वेज रेट्स का कोई भी किसी न किसी रूप में डॉक्यूमेंटेशन शुरू करे, क्योंकि उसका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ से शुरू होता है कि जब भी डिस्प्यूट खड़ा होता है, जब तक डिस्प्यूट नहीं है तब तक चले ठीक है, लेकिन जैसे ही डिस्प्यूट खड़ा होगा उसके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। तो एक तो अपने काम की जगह का कोई डॉक्यूमेंटेशन शुरू करें। दूसरा है कि एक अपना एक सोशल नेटवर्क वो जरूर वहाँ रखें। जनरली रहता है लोगों का, लेकिन एक अपना एक इस तरह का एक सोशल नेटवर्क डेस्टिनेशन पर बना कर रखे, जो कि किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी जरूरत पर उसको सपोर्ट कर सके। तीसरा, उनको थोड़ा बेसिक कानून के बारे में, एक फंडामेंटल कानूनों के बारे में, जिससे कि वो क्या तो हकदार है, किस चीज़ का हकदार है, कानून ने उसको बनाया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो कितना एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन उसको ये जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है कि वो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अपने आप को उस ट्रेड में स्किल्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, स्किल्ड होने की कोशिश करनी, जिससे कि स्किल्ड व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास थोड़ी सी चॉइसेस बढ़ जाती हैं, तो वो एक्सप्लॉयटेशन से तभी बढ़ सकता है जब उसके पास कुछ चॉइसेस बढ़ती है। आप एक्सप्लॉयटेटिव तभी बने रहते हैं कि आपके पास कोई और दूसरे ऑप्शंस नहीं। तो ये 2-3 तरह की बात है ना। थैंक यू। आई थिंक आपने एक बहुत बेसिक चीज भी जो एक बहुत फ्लैग की कि आई थिंक लेबर रिफॉर्म्स तक केवल वो करना एक केवल जरूरी नहीं है, एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल जिसको हम कहेंगे रिफॉर्म्स जो है दैट इज आल्सो, और या तो लेबर रिफॉर्म भी बिना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के और सेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो है वो एक आधे अधूरे ही रहेंगे। दैट्स व्हाट यू आर काइंड ऑफ फ्लैगिंग इन दैट वे। So thank you very much, Shri Krishna Avatar ji. I really enjoyed our conversation, and over to Chaitanya ji. And I'm looking forward again to learn a lot from you. आपसे सीखेंगे और भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली जैसे नरेंद्र जी ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास और 2-3 घंटे होते तो इसमें और भी जा सकते हैं कि इट इज सच अ बिग टॉपिक एंड इट हैज उसका जो इम्प्लीकेशंस लोगों पे, उन लोगों की लाइफ पे, इन द ऑन इट्स बिग ह्यूज नंबर।
तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने अपने प्रश्न डाले हैं चैट पे, मैं उनको पूछ लूंगा, लेकिन my request to anybody, please feel free to let us know if you want to talk. You can share your points, you can have a quick question. अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहें तो जरूर बोल दीजिए। तब तक के लिए एक दो प्रश्न मैं ले लेता हूँ। मृणाल जी ने पूछा है कि महाराष्ट्र के लिए कोई ऐसे हेल्पलाइन है क्या माइग्रेंट्स के लिए? बिल्कुल। अगर वो है नंबर मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा वो। जी 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 जी। और एक प्रश्न ये है कि क्या आप लोग आपका जो काम है, क्या इज इट मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न स्टेट्स है, या आर यू आल्सो वर्किंग इन अदर स्टेट्स एज वेल, जहाँ से माइग्रेंट लेबर का डेस्टिनेशन कहीं और भी होता होगा? तो चैतन्य जी देखिए, हमने शुरुआत में कोशिश तो की थी कि और जो हाई माइग्रेशन आउट माइग्रेशन वाली स्टेट्स हैं वहाँ भी हमारे अनुभव के आधार पर सोर्स पे काम किया जाए। बहुत अर्बन एरियाज में तो हमने उस काम को नहीं एक्सपेंड किया था, तो जिसमें उड़ीसा से काफ़ी थी, यहाँ उत्तर प्रदेश से काफ़ी थी, और भी स्टेट से थी। लेकिन वो अगर हम काम को एक्सपेंड करने के हमेशा इच्छुक हैं, लेकिन वो किसी और पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हम ये काम कर सकते हैं। आजीविका ब्यूरो की इतनी बैंडविड्थ नहीं है और ना हम उस स्केल पे हमारी कोई महत्वाकांक्षा है। लेकिन हाँ, इफ देयर आर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशन जो भी इस इशू पर काम करना चाहता है, तो आजीविका ब्यूरो इज रेडी टू गिव देम द टेक्निकल सपोर्ट, द अदर काइंड ऑफ सपोर्ट, so they can start work there. Wonderful, that's good. अभी कोई anybody would like to unmute themselves and share some thoughts or questions or whatever, please do that. चैतन्य जी, जस्ट सॉरी, अगर इफ आई कैन आस्क, जरूर केवल एक चीज के लिए अगर थोड़ा सा अगर आप शेयर करें कि जहां तक मुझे थोड़ा जानकारी है कि एक जो श्रमिक होता है वो कहीं भी अगर काम कर रहा है, जो लेबर अगर है, तो जैसे कई हिमाचल प्रदेश में सपोज काम करता है, तो वहाँ स्टेट का एक लिंक होता है या कुछ फॉर्म होता है जो उनको भरना होता है। अगर वो भर देते हैं, उसमें अपने बेसिक डिटेल देते हैं। दो तरीके हैं, एक तो या तो कॉन्ट्रैक्टर उनको रजिस्टर्ड करे उस पोर्टल पे, या तो स्वयं भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है कि जिसके जरिए वो दे आर काउंटेड एज ए रजिस्टर्ड एज ए लेबर? नरेंद्र जी, क्या है कि देखो, पहले क्या है कि और अभी भी एक इंटर स्टेट माइग्रेशन माइग्रेंट रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, और वो कानून एक तो इतना पुराना बना हुआ है, तो उसके आज की समय में बहुत ज़्यादा उस तरह की प्रासंगिकता रही नहीं। लेकिन वो कानून ये कहता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी भी वर्कर्स के ग्रुप ऑफ वर्कर्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लाएगा, तो वो एक तरह से लेबर डिपार्टमेंट की वहाँ रजिस्टर्ड करके लेकर आएगा, नहीं वहाँ भी रजिस्टर्ड होगा और यहाँ भी आकर रजिस्टर्ड होगा। अभी ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का आया था ना कि माइग्रेंट वर्कर्स को वापस एक रजिस्टर्ड करने का कुछ अलग अलग एक है ना कोशिश की जाए, तो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोई अपना एक ऐप डिजाइन कर रही है, ये कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रयास शुरू किए हैं। तो अगर वहाँ स्टेट का अपना कोई है अभी शुरू हुआ है, वो लिंक उनको बताया जा सकता है। थैंक यू जी। Would anybody else have anything to speak with Krishna Avatar ji? काफी समय हो गया अभी हाँ रूमा अवेकर जी has something. Would you Ruma ji, you can unmute and ask. Yes, sir. Thank you for giving me a chance. Sir, it's a very general question, but you could just tell me how much economy is taxed by the workers basically? Like what is the
statistics of the population taxing our economy, like how much it goes into doldrum or it's taxed because of the proliferation and are not able to stand on their own and are not capable themselves. हाँ, नहीं, ओवरऑल जीडीपी का अगर हम ये कहें कि जीडीपी का कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन जैसे एग्रीकल्चर का उसमें लेबर का है, तो वो करीब अभी जो हमारे पास जो आंकड़ा है वो करीब 10 से 12% जीडीपी का ओवरऑल जो हमारी अपनी वर्कफोर्स है उसका एक तरह से कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन है कि वो मतलब तकलीफ में है हम उसकी वजह से? नहीं, तकलीफ में तो है, तकलीफ में तो बहुत है ही हम, है ना? हाँ, बराबर। तो कितना मतलब एक इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान, पॉजिटिव नोट कितना 12% है उनका, पर है ना कितना वो स्ट्रेस में और जिस तरह की कंडीशंस में काम कर रहे हैं, कितना टोल देते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी विडंबना है ही, और जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी इतना नेग्लेक्टेड, इतना इनविजिबल बनाए रखा जा रहा है इसको। और आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन और इसके पैंडेमिक के बाद में हम लोग के समय वर्कर्स की उस समय जो सेंसिटिविटी बनी थी, एक संवेदनाएं बनी थी, वो कहीं धूमिल हो गई है ना। वर्कर्स को अभी की तारीख में जो हमारे अपने अनुभव कहते हैं रुमा जी की, और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस में काम करना पड़ता है, और ज़्यादा अनफेयर नेगोशिएशंस पे काम करना पड़ रहा है। Anyway, I think thank you so much, Krishnavatar ji, for the session today. जैसे हमने कहा कि काफ़ी टाइम होता तो और भी बात कर लेते, लेकिन अभी लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं हम लोग का ये शुरू करके। तो I think we can bring this presentation to a close. But anybody who has would like to contact you, I think they should be able to reach out to you on your email. अगर आप email share करेंगे तो maybe others can contact you. email आपके पास है, और I am happy to. Yeah. जी जरूर, we'll share that also. Yes. Thank you. Thank you so much. Thanks everyone, and have a good evening. Thank you Krishnavatar ji. Thank you Narendra ji also for your Thank you, participation. धन्यवाद। Thank you, Ji. Thank you. हरि ओम। Hari Om.